that's a stereotypical image about anybody sitting on a wheelchair. And somewhere even we get infected by the stereotype. Because even if I was playing, I was a spinal cord injury patient who was trying to rehabilitate herself through sports, who was trying to create a new identity. And so many myths were there. I was playing shot put for almost 6 years and my distance got stuck at 3.70. It would fluctuate 3.67, 3.68, 3.69, 70. Nothing beyond that in spite of continuous 6 years of training. And when I joined the journey of parasports for the Paralympics preparations, I had 11 months, just 11 months to get into the medal position. And my ranking was world number 8. I was 46 years of age. I have nothing chest below, no torso balance, no bladder control. Induced. I have very slow rate of recovery in the body because the blood circulation doesn't move that well. And I don't even have a gallbladder because it developed stones. So my digestion is somewhere very challenged. Now in this condition, people started talking behind my back and said she's wasting government taxpayers' money by being in the Target Olympic Podium scheme. From world ranking 8th, she can never get into the world top 3 rankings. I think the only thing which I did differently was meet Chirag Sethi and take a nutrition diet. Work to follow the right kind of diet, the right kind of balance, and I'm yet again in Target Olympic. Again, I'm going through athletic point of view only. Coming to यही जानना चाह रही हूँ, यहाँ पे different athletes बैठे हुए हैं. संदीप जी हैं, दीपा मैम हैं, आप हैं. सबसे पहले तो यहाँ पर मौजूद सभी को मनोज बॉक्सर की राम राम. मैं बताना चाहूँगा कि यूँ ही नहीं मिलती मंजिल ज़िंदगी में, हर गम सहकर भी मुस्कुराना पड़ता है. यूँ ही नहीं मिलती मंजिल ज़िंदगी में, मुझे खा खा के भी मुस्कुराना पड़ता है. यूँ ही नहीं गिरते फूल झोली में आकर, पेड़ की शाखा को हिलाना पड़ता है. अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं मिलता दोस्तों, मेहनत कर दिया खुद ज़िंदगी का, मेहनत कर दिया खुद अपने हाथों से जगाना पड़ता है. तो मैडम फिटनेस के ऊपर बात हुई है, तो फेस तो बॉक्सर को हर चीज़ का इतनी पास से आपको बचना भी है और मारना भी है, सहन भी करना है और सामने वाले को मुक्कों से प्रहार भी करना है. बिल्कुल पछाड़ देना, तभी तो गोल्ड मेडल आएगा. मैं फिटनेस के बारे में एक बार बताना चाहूँगा कि हरियाणा के यहाँ आते जब आपको होगा ही. देखिए एनर्जी अच्छे खान पान के बिना आएगी नहीं. तो एनर्जी जिस इंसान में होगी तभी वो कुछ कर पाएगा. एनर्जी के लिए अच्छा खान पान और अच्छा खान पान पचाने के लिए उसको मेहनत भी करनी पड़ेगी, शरीर की अच्छी फिटनेस करनी पड़ेगी. No, I'm born vegetarian, so never actually have tasted chicken or meat in my life. I remember, I'm from Punjab, so genetically we are blessed. I remember when I started, I'm an engineer, and I started my life from Nagpur. The first time I went to the gym, that was in Nagpur, and I never knew anything about proteins, what proteins are, what carbs are. My only daily routine was go and hit the gym, just get some milk, the kacha packet khola, khada piya, out the Sunday khai, and that was an everyday routine. And never actually counted what calories are, but I survived all those 3-4 years. And when I actually started my career as an actor, then I realized that yaar, butter nahi khana chahiye, bread is not very good. So all these things came later in my life. But like I said, when I meet, professionals, all those people, I still learn. Today also I learned a few things from Chirag that I want to implement in my diet. But it's very important to, like I say that, it's very important to really take care of yourself. Everyone is busy. People say, I meet so many people. I say, boss, gym jana shuru karenge yaar.
शादी हो गई, अभी क्या जिम जाना, अभी तो सब सेट है लाइफ, अभी क्या है सब. So I think that's the time you need to actually start, boss. It's never too late. Whether you're 50, 60, 70, still you need to come out and spend those few hours on yourself, whether it's diet or whether you work out in the gym. I remember, I met recently one of my teacher who was in Nagpur with me, and I couldn't recognize him. He said, "Sorry, you remember?" I said, "Yeah, sir, very familiar, but I couldn't recognize." In those 8-10 years, he must have aged almost 25-30 years. And he said, "Sir, what happened to you?" And sir, "You have to go to the gym. Why? What are you not?" Yes, so अभी मेरा retirement हो रही है, अभी क्या tension है, अभी सब life set है, my son is in US, my daughter is doctor, so अभी क्या है? But he said, "No, sir, you have to take care and all." I tried to motivate him, and I then again met him after 6 months. He was looking 10-15 years younger, and he said, "So मैं gym जाता हूँ, मेरे biceps देखो, they are looking fitter and all." So I was very impressed. So at least I would say, even if you can change one life, if you can inspire one individual to go to the gym and follow a healthy diet, learn, meet the professionals, read about it, everything is available. So I think that's the only way you can survive in this world where, like you said, everything is artificial and we have pollution all over, we have busy lives, and so I think everything you can set it apart and you can just respect yourself. Go to the gym not for yourself but for your families. I think it's very important. If you want to stay with them for a longer life, just respect and love yourself. Thank you, Sonu, and I'm sure कि अब तिल का लड्डू ऐड हो जाएगा डाइट में. तिल का लड्डू, sugar free. Okay, now I'm coming to Mr. Sam. मेरे पास choices थी. या तो मैं दुखी हो जाती, उदास हो जाती, हार मान लेती, and to live healthy for my children. And जो भी मेरे रास्ते healthy रहने के लिए आया, First से पक्का शुरू करें. I think the people who have Mondays and first in their life, that Monday never comes, that first never comes, and never no New Year resolutions. Because यार अभी नवंबर खत्म हो रहा है, दिसंबर 1 जनवरी से हम लोग जिम शुरू कर रहे हैं, और न्यू ईयर कभी नहीं आता. So जो होता है वो आज होता है, अभी होता है. Just I think वो आज और अभी आज ही है. So I hope in all all the people who really, everyone wants to go to the gym actually, और हर किसी के पास सभी gyms की membership रहती है. और बोले यार आज मैंने मेंबरशिप ले लिया, बस देखो वो मेंबरशिप बड़ी एक्सपायर हो जाती है, लेकिन जिम नहीं जाते हम लोग. So I think it's important to I think hope it changes the whole odd changes, and it's I think when you get inspired, that's the time you'll inspire the next generation. So not for yourself but for the next generation, just go and hit. Well, this is very true, because I myself is a mother of 11-year-old. I said, fantastic, nothing like it. So, I know, Sonu, you have a... I just want to tell that, whenever I travel across the country where I'm shooting, I was in Ladakh. In that gym, there were 3 dumbbells, 1 bar, that's it. And I called the owner of the gym. I said, "Sir, यहाँ पे 1.5 महीना रहने वाले हम लोग, at least get some machines and all." He said, "Sir, अभी आ जाएंगे." It took 20-25 days to get those machines, but in those 20 days, I was working out with those 2 dumbbells, doing my push-ups, doing my sit-ups, chin-ups, whatever. But I just want to tell you that today I've learned a lot of lessons of my life. I learn every day, from all the experts, and I'm going to implement in my life. And whatever you have learned from all these experts, do implement in your life from today, not from Monday, not from not from 1st of January. I think today is the New Year's if you hit the gym tomorrow. This is all the best, and hope we have many more sessions like that in which I learn from all the rock stars, and all the best to you guys, and just stay fit and make this country a fitter place. Thank you so much. मैं लुक सामने देता हूँ. फिट इंडिया कैंपेन जो ये शुरू हुआ है जी, आपके लिए ये कैंपेन कितना इम्पोर्टेंट है और क्या खास बात आपको लगती है इस कैंपेन में? आई थिंक बहुत ज़रूरी है. मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि ऐसी कुछ चीज़ होनी चाहिए जो अवेयरनेस बता सके, जहाँ पे एक्सपर्ट्स हों, जिनको नॉलेज हो, जहाँ से हम लोग कुछ सीख सकें, जहाँ से हम लोग लोगों को सिखा सकें. हर इंसान फिट होना चाहता है, लेकिन वो जो ड्राइव है, जो अवेयरनेस है, वो नहीं है. तो आई थिंक इट्स ए ह्यूज
campaign, Fit India. And I think the whole country has to be a part of it to make it hugely successful and to inspire it. मुझे लगता है जो torch हम सब ने हाथ में पकड़ी है वो पूरी दुनिया में, पूरे देश में घुमानी है ताकि this country can be a better and fitter place to live. आपका फिटनेस का रीज़न क्या है ये बताना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको खुद से बहुत प्यार करना बहुत ज़रूरी है. कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि आज मेरे पास समय नहीं है, आज मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बहुत लेट सोया था, मैं आज मीटिंग्स बहुत हैं. आपकी ज़िंदगी में सिर्फ 22 घंटे होने चाहिए. 2 घंटे जो हैं वो फिटनेस के लिए हैं. चाहे आप अच्छा खाएं, अच्छा जिम जाएं, कुछ भी करें, उस 22 जिस इंसान की ज़िंदगी में वो 22 घंटे की कैलकुलेशन होगी वो अपने आप 2 घंटे निकाल ही लेगा. सप्लीमेंट और प्रोटीन को लेकर एक मेंटालिटी है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं तो ही आपको लेना चाहिए. यहाँ पर उससे कैसे डिफर करते हैं? मुझे लगता है कि जो सप्लीमेंट्स की बात करें या प्रोटीन्स की, बहुत लोग ऐसे हैं जो घबराते हैं कि पता नहीं है कुछ सही है नहीं सही है या कुछ बॉडी को तकलीफ़ तो नहीं होगी इससे. यहाँ पर ये जो कैंपेन्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पे काम आते हैं कि कितनी ज़रूरी है ये सब चीज़ें बॉडी के लिए, लेकिन सही चीज़ें सही मात्रा में और सही टीचर, सही गाइड करने वाले लोग चाहिए. आई थिंक ग्लैनविया की जो ये मूवमेंट है वो इतनी कमाल की है. मैं बहुत कुछ सीखने वाला हूँ. मैं आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द मैगज़ीन और मैं देख रहा था कि कितनी एफर्ट्स डाली गई हैं टू ब्रिंग दैट अवेयरनेस. और जब मुझे ऐसा लगता है कि जब टीचर्स आपके अच्छे हों तो स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा ही आता है, और यहाँ पे टीचर्स बहुत कमाल के हैं तो रिजल्ट 100% अच्छे ही आएंगे. आज के फूड्स के बारे में क्या कहते हैं? जो आज के फूड्स आ रहे हैं उसमें बहुत सारे मिलावट है, उसकी वजह से बहुत सारे आई वुड से जो आजकल हमें चीज़ें मिलती हैं मार्केट्स में, डेफिनेटली एवरीवन नोज़ कि प्योर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं. और ये हमारे हाथ में कितना कंट्रोल करना हमें पता नहीं, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो ये है कि हम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको बदलें. हम सही खाएं, हम सही जो चीज़ों की ज़रूरत है. मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं जो वेजिटेरियन लोगों के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप सही लें और हमेशा सीखने की कोशिश करते रहें. मुझे लगता है कि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती. मैं आज भी, मुझे कितना भी लोग बोलें कि मुझे फ़िटनेस की बहुत नॉलेज है, लेकिन मैं फिर भी रोज़ सीख के जाता हूँ. और जब तक आपके पास गाइड करने वाले सही लोग हैं तो मुझे लगता है कि आप गलत हो ही नहीं सकते. आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि फ़ूड अच्छा नहीं मिलता तो इसलिए यार मेरी तबीयत सही नहीं रहती, मैं फ़िट नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ. तो फूड सभी के लिए वैसे ही है, बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द राइट डाइट, राइट पीपल एंड जस्ट लव योरसेल्फ. सोनू, आज के दौर में जहाँ लोग सब्जियाँ खरीदना इतना महंगा हो रहा है, ऊपर से आपने कहा कि वो सब्जियों में भी आपको सही प्रोटीन नहीं मिलता जी, तो वैसे लोग कैसे इस प्रोटीन को अफोर्ड करेंगे? मैं जैसे आपने बताया कि आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर हैं वो वही मकसद है कि अवेयरनेस क्या है, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुँच सकती हैं, जिनके बारे में लोगों को नहीं नॉलेज. लोग घबराते हैं कि यार हम सुपरमार्केट्स में ये सब चीज़ें बहुत महंगी हैं और वो कैसे पहुँचेंगी. बट आई थिंक वो उन सब चीज़ों के कारण ही ये मूवमेंट शुरू हुई है, ये कैंपेन शुरू है फिट इंडिया की. जिन लोगों का वो एक्सेस नहीं है, जिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, उनको उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दिलाना है और बताना है कि बॉस अगर आपकी हेल्थ के लिए हर चीज़ की कोई कीमत नहीं होती, हर चीज़ अवेलेबल है, सही लोग अवेलेबल हैं, सही दामों पर अवेलेबल है, सिर्फ आपको उस तक पहुँचना है. सो आई थिंक दैट्स अ कनेक्शन वी आर ऑल हियर फॉर. सर आपसे बात करना चाहिए जी. आपके साथ You in terms of do you see more of these types of things that are required by corporates in terms of just general awareness? What would you say is going to change what do you think is going to be the single biggest factor that's going to change the community in terms of their attitude towards their fitness and health? No, like I said, everyone wants to get fit, but again, the knowledge is very less. There are very few people who actually want to bring this issue forward. And I think all thanks to you guys that you have changed the whole face of India. That attempt is there, and I think that the torch that you have tried to give in our hands, and I think together as a family, together as a team, we should march forward and bring that awareness that boss, everything is available, everything is right. Just you need to get right knowledge and right people, and I think with all the corporates coming together and especially I just got to know about it, like all those 1,000 villages have been will be pumped with all these information and all the right foods. I think it's a huge thing, and I'm really blessed to be part of this family here. देखिए पल्टन के शूट से आ रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 50 दिन से लद्दाख में हूँ, सीधा वहीं से आ रहा हूँ, अभी यहाँ से सीधा वहीं जा रहा हूँ, इसलिए हालत भी बिगड़ी हुई है इस समय. बट लाइक वी शूटिंग इन आई मीन जो भी टेरेन्स है वहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, टेम्परेचर -5 -10 है इस समय,
और लेकिन मज़ा आ रहा है. JP दत्ता आई थिंक इज़ अ ब्रिलियंट टेक्नीशियन और आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ द होल फिल्म. और जो कुछ हमने 45-50 डेज़ में शूट किया है, सो आई वुड से इट्स काइंड ऑफ अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड होप व्हेन द फिल्म कम्स इन अदर 4-5 months, whenever the product is ready, every Indian will be proud of it. इसके अलावा मणिकर्णिका की भी बहुत चर्चा हो रही है मूवी की, तो उसके बारे में थोड़ा अगर कुछ बता पाएं. अरे फिट इंडिया की बात करते हैं कुछ. सोनू, एक कोई ऐसा मोमेंट जब आप बहुत थके हुए हैं और आपको लगता है कि आप जिम नहीं जा सकते और फिर भी आपको लगा कि नहीं मैं जिम करूंगा और मैंने किया, ऐसा कोई? 3-4 साल पहले मेरे क्रिकेट खेलते समय टांग टूट गया था और मेरे 2 प्लेट्स और 17 स्क्रूज डाले थे. और मैं अंबानी हॉस्पिटल में जब जाके पहली दफ़ा स्टिचेस खुलवाए तो मैं वहाँ से डायरेक्टर जो मेरे डॉक्टर थे, मैं उनसे वही पूछा कि सर मैं यहाँ से जिम जा सकता हूँ? तो कहते आई श्योर यू वांट टू गो इट. तो मैंने बोला हाँ. तो मैं वैसे ही क्रचेस के साथ जिम गया, वहाँ बैठा और मैंने एक्सरसाइज किया. एंड जो डॉक्टर्स बोले थे कि 8 से 10 महीने रिकवरी में लगेंगे, तो मैं 2.5 महीने में वापस ऑन सेट था. सो आई थिंक फिटनेस के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. आप यहाँ पे खूब इंटरव्यूज़ लेंगे, खाना वाना खाएंगे, रात को घर जाएंगे, लेकिन आप खुद को बैठ के रात को सोचना है कि आपने आज अपने लिए क्या किया. आपने अपने प्रोफेशन के लिए इंटरव्यूज़ लिए, बहुत मेहनत की, ट्रैफिक में घूमे, लेकिन आपने खुद के लिए क्या किया. आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए अपने आप को प्यार करना शुरू कीजिए और अच्छा खाइए, जिम जाइए, फिट रहिए. आई थिंक आपको महसूस होगा कि लाइफ में क्या बदलाव आए हैं. थैंक यू. सो आई वुड, जो ऐसे सोनू ने बताया कि फिट रहने के लिए अपने आप को पहले लव कीजिए और अपने लाइफ में कम से कम 40 मिनट हो तो 2 घंटा बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कम से कम 45 मिनट्स ऑफ योर प्रेशियस टाइम अपनी ज़िंदगी के निकालिए और अपने आप को कमिट कीजिए. जब पहले आप चेंज खुद होंगे तब आपका परिवार चेंज होगा, उसी के बाद सोसाइटी चेंज होगा. अब अपने आप में वो चेंज लाइए. और फिटनेस का गोल उनके लिए अलग है, ये बॉलीवुड के स्टार हैं, एक फिटनेस आइकन है, उनके लिए अलग है. हर आदमी का अपना फिटनेस गोल होना चाहिए. गोल अलग नहीं होता, सब गोल अच्छा होता है, बट उसके लिए आपकी कमिटमेंट एंड उसके साथ पुष्टिकर खाना, जो खाने की आपकी ज़रूरत है, आपका कितना रिक्वायरमेंट है. आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई यहाँ आके बात कर रहा है, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट है, उस अनुसार आप खाइए. सेल्फी ले सकते हैं तो अपनी फूड की प्लेट की भी सेल्फी लीजिए और देखिए आप क्या खा रहे हैं. आप फिटनेस आइकॉन है और आप स्पोर्ट्स को भी बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आप पीवी सिंधु के भी ऊपर मूवी बनाने वाले हैं, तो उसका क्या स्टेटस है? ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट रेडी हो गया है. जैसे मैंने बताया कि मैं पिछले 50 दिन से लद्दाख में हूँ. अभी 10 से 12 तारीख को हम लोग स्केड्यूल ख़त्म करके वापस आ रहे हैं. स्क्रिप्ट रेडी हो चुका है, कुछ एक्टर्स ने सुना भी है, बड़ा कमाल लगा है सब कुछ. होपफुली इस महीने में आपको नाम की अनाउंसमेंट भी आ जाएगी और आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू स्टार्ट द मूवी. आई थिंक अर्ली नेक्स्ट ईयर वी विल स्टार्ट द शूटिंग ऑल्सो. और सर, हम जब आज यहाँ बात कर रहे थे, हम ऐसे लोगों की बात करते हैं जो कुपोषित है. इंडिया में बहुत एक पॉपुलेशन है जिनको ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो ग्लैनविया उन तक कैसे पहुँचेगा, उनको क्या फ़ायदा होगा? हाँ जी, सब आंखें और कान बंद कर लो. सर, जिस तरह से शरीर की आप लोग कह रहे हैं कि फिट रखना चाहिए, उस तरह से मन को भी स्वच्छ रखना चाहिए. क्या कहेंगे यहाँ पर स्वच्छ सोच को लेकर, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है समाज में महिलाओं के प्रति अत्याचार, बच्चों के प्रति दुराचार हो रहा है, तो स्वच्छ सोच किस तरह से रखना चाहिए? देखिए, जो आपने स्वच्छ सोच की बात की, वो भी स्वच्छ शरीर से ही शुरू होगी. अगर आप खुद अगर आप मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कभी आज तक ड्रिंक नहीं किया, मैंने आज तक कभी सिगरेट टेस्ट नहीं किया. मुझे पता नहीं था कि ऐसी आदतें लगेंगी या नहीं लगेंगी. शायद फिटनेस में शुरू में आ गया, तभी कभी लगी भी नहीं वो आदतें, वो चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं गया. तो आई फील कि ये जो सोच है, या वो तो आपके इर्द गिर्द वाले लोग ही आपको बताते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, वो क्या सोचते हैं. आप सिगरेट पीएंगे तो मैं आपको बोलूँगा सिगरेट नहीं पीनी, आपको छोड़ दीजिए सिगरेट. तो आप अगर छोड़ देंगे तो शायद मेरी सोच आपकी कुछ काम आई. सो आई फील कि अगर आप खुद में बदलाव नहीं ला सकते, तो मुझे लगता है आपके पास ऐसे लोग, आपकी कंपनीज ऐसी होनी चाहिए जो आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी रूटीन्स बदल सके, जो आपके एक्सक्यूज़ को पछाड़ सके कि बॉस कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये करना है आपको और ऐसा करना है. सो आई थिंक कंपनी मैटर्स अ लॉट. और इफ़ यू आर फिजिकली फिट, I think you start thinking right, and you become mentally also fit. So I think it's a vice versa. I would say it's a combination which goes hand in hand. आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छी सोच बन जाएगी. So I think अच्छा आप सोचना शुरू कीजिए और देखिए फिर आप कैसे फिट हो जाएंगे. Thank you.